Good morning, student. Today we have to start topic number 5, that is reconstitution of partnership form, death of partner. In that we have to solve this question. Second question, Rakesh, Mahesh and Mukesh were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, 2:1 respectively, and their balance sheet as on 31st March 2019. See here, liability side is there and asset side is there. Then immediately we have to see that adjustment. Mukesh died on 30th June 2019 and the following adjustment were made. Means in this question, death arises of Mukesh. Okay, three partners are there, Rakesh, Mahesh and Mukesh. So Mukesh death arises on 30th June 2019 and following are the adjustment. Asset were revalued as plant and machinery 44,000, motor truck 18,000 and investment 17,000. So we have to mark here first adjustment plant and machinery, motor truck and another one investment is there. Then second adjustment, all debtors were good, means no RDD is there. So adjustment number 2 for debtors. Then third adjustment, goodwill of the firm valued at 2 times the average profit of the last 5 years. No goodwill account to be shown in the books of the firm. So goodwill account books में दिखाने की ज़रूरत नहीं है. Then adjustment number 4, Mukesh share profits up to his death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. So we have to calculate goodwill on the basis of average profit. Then fifth adjustment, 5 years profit were first year 6,000, second year 11,000, third year 7,000, fourth year 12,000 and fifth year 24,000 respectively. Means here we have to calculate goodwill on the basis of this profits of 5 years. So immediately we have to start here, prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet as on 1st July 2019. So here we are preparing profit and loss account, adjustment account, then partners capital account and balance sheet as on 1st July 2019. Okay, so first we have to see here that liability side is there. So first we have to complete the liability side, then afterwards we have to start asset side. So पहले liability side देखेंगे हम लोग. Liability side में क्या दिया है, capital accounts of राकेश, महेश and मुकेश. So capital account कहाँ पे जाएगा, partners capital account में जाएगा by balance brought down because liability having credit balance. So credit side में by balance brought down. Rakesh here 30,000, Rakesh 30,000, then Mahesh 20,000 and Mukesh 10,000. Credit side में record किया by balance brought down. After that creditors 8,000, bank loan 20,000 and bills payable 18,000. ये सब liability में record होगा. Liability में record करेंगे क्योंकि no adjustment is there. So liability side creditors 8,000, bank loan 20,000 and bills payable 18,000. After that asset side we have to see that asset side देखेंगे. asset side में क्या है, पहले plant and machinery. So plant and machinery adjustment दिया है, motor truck adjustment number 1 as well as investment adjustment number 1. So first adjustment देखेंगे हम लोग. So first adjustment, that asset were revalued as plant and machinery 44,000. asset side में plant का value कितना दिया है 40,000 और adjustment में value बढ़ गया, that is what, appreciation. plant and machinery का value बढ़ गया 44,000 outer column में लिखेंगे. So asset side plant and machinery 40,000 और outer column में 44,000 because adjustment. So 4,000 से increase हो गया
मतलब एप्रिसिएशन, सो ऐड एप्रिसिएशन 4000, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, सो आउटर कॉलम 44,000। हियर एसेट इंक्रीज, एसेट बढ़ गया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज एसेट इंक्रीज, दिस इज इनकम बाय प्लांट एंड मशीनरी 4000। ओके, इमीडिएटली मोटर ट्रक दिया है, मोटर ट्रक क्वेश्चन एसेट साइड में 20,000 है और एडजस्टमेंट में 18,000 है, मतलब वैल्यू कम हो गया। यहाँ पे 20,000 है और एडजस्टमेंट में 18,000 है। एडजस्टमेंट का अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। सो एसेट साइड में रिकॉर्ड किया मोटर ट्रक 20,000 और एडजस्टमेंट का अमाउंट 18,000, मतलब क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज, डिक्रीज कितने से हो गई, 2,000 से। सो दैट इज़ व्हाट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू, मोटर ट्रक का वैल्यू कम हो गया 2,000 से। सो लेस डेप्रिसिएशन 2,000, आउटर कॉलम 18,000। अभी देखो यहाँ पे एसेट का वैल्यू कम हो गया, एसेट डिक्रीज, सो दिस इज एक्सपेंसेस और लॉस, तो दैट इज रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू मोटर ट्रक 2,000 से कम हो गया वैल्यू। देन आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट इज देयर, इन्वेस्टमेंट 17,000 दिया है और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है 18,000 है। सो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,000 से कम हो गया, 17,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो इन्वेस्टमेंट 18,000, क्वेश्चन का 18,000, यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया 18,000 और 17,000 एडजस्टमेंट का लिखा है। सो 1,000 से रिडक्शन हुआ, सो लेस रिडक्शन 1,000। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस मतलब एसेट डिक्रीज हो गया, सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 1,000। सो हियर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड, सो टिक मार्क हियर कि पहली वाली एडजस्टमेंट हो गई। देन सेकेंड एडजस्टमेंट, ऑल डेटर्स वेयर गुड। ऑल डेटर्स वेयर गुड मतलब आरडीडी नहीं है, ये जो 2,000 आरडीडी क्वेश्चन में दिया है एसेट साइड में, ये आरडीडी नहीं है, नहीं है मतलब नो एक्सपेंसेस, सो दिस इज इनकम। सो हियर डेटर्स का डायरेक्टली 16,000 अमाउंट आ जाएगा। क्यों 16,000 आ गया है, क्योंकि ऑल डेटर्स वेयर गुड, सो दैट 16,000 अमाउंट, क्वेश्चन का 16,000 अमाउंट हम लोग ने एसेट साइड में लिया है 16,000। और ऑल डेटर्स वेयर गुड मतलब वो आरडीडी नहीं है, सो नहीं है मतलब दिस इज इनकम, सो बाय आरडीडी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो गया 2,000 रुपीज़। ओके, all debtors were good means it is recorded on credit side because no RDD is there, no reserve for doubtful debts is there, no loss is there. So second adjustment is also over. Then बैंक दिया है, बैंक 14,000 दिया है, so बैंक we have to record here asset side बैंक 14,000. so अभी ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड भी हो गया और एसेट साइड भी हो गया। अभी नाउ रीड दैट थर्ड एडजस्टमेंट इज देयर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, मतलब पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एंड नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में गुडविल अकाउंट हमें दिखाना नहीं है। ओके, देन सो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये गुडविल का अमाउंट निकालेंगे। ओके, सो ये वर्किंग नोट आएगा, वर्किंग नोट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अभी टोटल प्रॉफिट कौन सा है, सर टोटल प्रॉफिट दैट एडजस्टमेंट नंबर 5, सी हियर एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है 5 years profit, your first year 6,000, second year 11,000, third year 7,000, fourth year 12,000 and fifth year 24,000 respectively. दिस इज़ वॉट, ये पूरा ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। कितने ईयर्स का है, 5 years का है। ओके, सो टोटल प्रॉफिट वर्किंग नोट ईयर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। सो ये एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, ये 5 साल का टोटल प्रॉफिट लिखा है
divided by number of years, that is 5 years. 1, 2, 3, 4 and 5. सो एवरेज प्रॉफिट कितना आता है 12,000 रुपीज़. फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस. नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस दिया है, दैट नंबर ऑफ ईयर परचेसेस मीन्स हियर कौन से नंबर ऑफ ईयर्स 2 टाइम्स दिया है. देखो 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. एंड हियर adjustment number 4, that Mukesh share profit up to his debt to be calculated on the basis of average profit year of last 2 years. मतलब number of years कितना है 2 times है. ओके, थर्ड एडजस्टमेंट 2 times. So average profit into number of years. So number of years है 2. So 12,000 average profit आया ये. ओके, 12,000 into number of years 2 means 24,000. और मुकेश का शेयर इन गुडविल हम लोग निकालेंगे. क्यों मुकेश शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ पे दिया है ऑलरेडी. गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years एंड नो गुडविल अकाउंट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और इसका डेट कब अराइज हुआ है, मुकेश का डेट कब अराइज हुआ है 30 जून 2019. और मुकेश का शेयर भी हमें देखना है. तीनों का शेयर कितना है 3:2, 2:1. मतलब ये राकेश का है 3, उसके बाद महेश का है 2 एंड 1 मुकेश का है. एंड डेट कब अराइज हुआ है 30 जून 2019. ओके, सो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मुकेश शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इंटू 1/6 इक्वल टू 4,000. ओके, ये मुकेश का आया है 1/6, दैट इज 24,000 इंटू 1/6, दैट इज 4,000. ओके, उसके साथ ही हम लोग 4,000 और ये 4,000 गुडविल है. ये 4,000 गुडविल 2 रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट इज़ राकेश एंड महेश में डिस्ट्रीब्यूट होगी. दिस इज़ 4,000. सो 4,000 इंटू 3/5, क्योंकि राकेश का रेशो कितना है, राकेश रेशो इज़ 3. महेश का 2 है और मुकेश का 1 है. सो डेथ अराइज मतलब इसका नहीं हमें लेना है. सो वी हैव टू टेक 3:2. इसीलिए राकेश का शेयर कितना आ गया, राकेश शेयर इन गुडविल 4,000 इंटू 3/5. ओके, तो आता है 2,400. सेम वे महेश का शेयर इन गुडविल 4,000 इंटू 2/5, 1,600. क्योंकि तीनों का रेशो क्या है 3:2, 2:1. ओके, सो ये गुडविल की एंट्री पास होगी. और क्वेश्चन में क्या दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म valued at 2 times of average profit of last 5 years. No goodwill account to be shown in the books of the firm. मतलब गुडविल अकाउंट हमें दिखाना नहीं है. हम लोग पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या करते थे, यहाँ पे बाय गुडविल करते थे और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. लेकिन अभी क्या है, गुडविल अकाउंट नहीं दिखाना है. तो एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पे देखो एंट्री क्या हो जाएगी. राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,600 टू मुकेश कैपिटल अकाउंट 4,000. पहले हम लोग एंट्री क्या पास करते थे, गुडविल अकाउंट दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे. ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे एंट्री एडमिशन ऑफ पार्टनर में. लेकिन अभी ये क्या है, उन्होंने गुडविल अकाउंट मेंशन नहीं किया, इसीलिए पार्टनर्स के नेम जाएंगे. राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,600 टू मुकेश कैपिटल अकाउंट 4,000. और यही जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पास हो जाएगी. देखो, बाय राकेश कैपिटल अकाउंट 2,400 हम लोग ने कैलकुलेट किया, और बाय महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,600. और मुकेश कैपिटल में देखो डेबिट साइड में टू मुकेश कैपिटल अकाउंट 2,400 राकेश एंड महेश 1,600. मतलब ये क्या है, मुकेश ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है
मुकेश का जो शेयर ऑफ गुडविल है ये 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो दोनों तरफ एंट्री आ जाएगी। बाय राकेश कैपिटल अकाउंट 2400, बाय महेश कैपिटल 1600 एंड डेबिट साइड में टू मुकेश कैपिटल अकाउंट 2400 एंड महेश 1600. So here all this is we have to pass here. Then another important thing is that this is the important thing that this adjustment is over. Then adjustment number 4, मुकेश share of profit up to his death, 5th भी हो गया, to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. This sentence is important. मुकेश share of profit अप टू हिज डेथ, मतलब मुकेश का डेथ कब अराइज हुआ है, 30 जून को अराइज हुआ है मुकेश का डेथ, तो तब तक का बिजनेस का प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ कब से स्टार्ट है 1 अप्रैल टू जून तक हम लोग प्रॉफिट जो आएगा, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स. सो लास्ट 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट क्या है, दिस इज 4th and 5th one, 12,000 and 24,000. सो वो पहले कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट में आएगा कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 1 जुलाई 2019, क्योंकि डेथ कब अराइज हुआ है, 30 जून को डेथ अराइज हुआ है, मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून, मतलब 1 जुलाई तक वो शेयर रहेगा. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, 12,000 प्लस 24,000. ये 4th ईयर का प्रॉफिट है, 4th ईयर का प्रॉफिट है 12,000 और 5th ईयर का है 24,000. सो 12,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 2, 36,000 दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो आता है 18,000. और ये अकाउंटिंग पीरियड कब से है, 1 अप्रैल टू 30 जून, मतलब अप्रैल मई जून पूरा आएगा, क्योंकि 30 जून में डेथ अराइज हुआ है 30 जून को. सो 3 मंथ्स का. सो 18,000 इंटू 3/12 तो आता है 4,500. ये प्रॉफिट आता है, लेकिन ये प्रॉफिट रेशो में शेयर होगा. रेशो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे लिखा है 3:2:1. तो मुकेश का रेशो कितना है 1, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, सो 1/6. सो मुकेश शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा 4,500 इंटू 1/6, 750. हम लोग ने ऑलरेडी थियोरी में हम लोग ने सीखा है कि जो भी प्रॉफिट आता है, सपोज डेथ अराइजेस इन द बिजनेस, देन दैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. कहाँ पे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 750 मुकेश का. और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मिला है, सो एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 750. ओके, सो हियर ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर, all tick marks are over here. Then we have to do the total करेंगे हम लोग. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड का टोटल आता है 6,000 और डेबिट का 6,000 माइनस दिस 3,000, तो 3,000 प्रॉफिट आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड इज मोर. क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगर आता है तो वो क्या है, पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और ये प्रॉफिट है, ये कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में ही डिवाइड होगा. ओल्ड रेशो कितना दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ना, 3:2, 2:1. सो 3,000 इंटू यहाँ पे 3/6 राकेश का आएगा, 3/6 करेंगे तो 1,500. इस 3,000 इंटू 2/6 आता है 1,000 और 3,000 इंटू 1/6 आता है 500. ओके, सो 3,000 here. That profit we transfer to partners capital account credit side here by profit and loss adjustment account
1500, फॉर राकेश महेश 1000 एंड मुकेश 500। अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। यहाँ पे मुकेश का, यहाँ पे पहले मुकेश का टोटल करेंगे। सो मुकेश का टोटल कितना आता है, यहाँ तक आता है 15,250। 15,250 मुकेश का आता है, माइनस तीस, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली 15,250 जो है वो मुकेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में जाएगा। जो भी बैलेंस रहता है वो बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। सो 15,250, ओके। और इसका ही सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। सो मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो गया 15,250। एंड आफ्टर दैट महेश का टोटल करेंगे। महेश का टोटल आता है 21,000। सो महेश का टोटल आता है 21,000। क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, डेबिट टोटल कितना आता है 1,600। सो 1,600 करेंगे तो आता है अमाउंट 19,400। दिस इज बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 19,400। सेम वे राकेश का भी करेंगे। राकेश का आता है 31,500 माइनस 2,400, तो आता है बैलेंस अमाउंट 29,100। सो दिस बैलेंस वी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स में। राकेश 29,100 एंड हियर महेश का 19,400 यहाँ पे रिकॉर्ड किया। सो दोनों राकेश और महेश का ये बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग ने ट्रांसफ़र किया लाइबिलिटी साइड में, राकेश एंड महेश। सो टोटल आउटर कॉलम 48,500। और अभी ये टोटल करेंगे। लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 1,09,750। सेम वे एसेट का टोटल करेंगे, दो दो करके टोटल करते हैं तो इमीडिएटली टोटल होता है 1,09,750। सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन योर notebook. Only difference is here that you have to calculate goodwill, और मुकेश का रेशो से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक।